जिगेस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रा पर हमले का मंसूबा रखने वाले 3 दहशतगर्दों को केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश करते हुए किया हलाक। बड़ी मिकदार में असला बारूद किया गया बरामद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में 15 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक 5 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हुआ आगाज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिताह। जम्मू खित्ते के 3 इजला में मुश्तबा नकलो हरकत देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर चलाई गई तलाशी कार्रवाई। जम्मू और उधमपुर से बरामद हुए पुराने ग्रेनेड और मोर्टार शेल। मकामी एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के मकसद से जम्मू और कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने जिला इंतजामिया बारामूला के ताउन से डाक बंगला बारामूला में ई कॉमर्स ऑन बोर्डिंग मुहिम का किया एहतमाम। और कश्मीर में 8वें मुहर्रम का जुलूस पुरअमन तरीके से हुआ इख्तिताम पजीर हजारों अज़ादारों ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में चौकस भारतीय फौज के जवानों ने 13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात को एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और बड़ी मिकदार में हथियार और असला बारूद बरामद किया गया है। इसके मुतालिक जानकारी आज 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर NR कुलकर्णी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि एक मखसूस इत्ला पर काम करते हुए सरहद की उस जानिब से दरअंदाजी की कोशिश देखी गई, जिस पर फौरी तौर हरकत में आते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जो कि यहां अमरनाथ यात्रा में खलल डालने का मंसूबा रखते थे। There have been multiple intelligence inputs from various intelligence agencies with respect to presence of terrorists in multiple launch pads opposite the Keran sector of Kupwara district. The inputs were primarily of terrorists planning to infiltrate and carry out sabotage and subversive activities in the hinterland with a view to disrupt the normalcy in general and the Amarnath Yatra in particular. The area on and ahead of the line of control has therefore been aggressively dominated by own troops for the last few weeks. On 12th of July, specific input was given by own intelligence agencies and was further corroborated by the Jammu and Kashmir police regarding the mixed group of foreign terrorists likely to infiltrate through the Keran sector, leveraging dense cover of forest and thick undergrowth along the nalas. Accordingly, multiple ambushes were jointly laid by Army, BSF and JKP since the night of 13th and 14th July on the appreciated routes of infiltration, and besides this, we were maintaining surveillance of the complete area. Round the clock high alert was maintained by troops in the entire area. On 14th of July at approximately 1500 hours, a movement of 3 terrorists was spotted by own ambushes in the area under control of Pakistan Army across the line of control. Employing multiple high-tech surveillance devices, the movement of terrorists was continuously tracked. The terrorists, taking advantage of the thick foliage and poor visibility, sneaked across the line of control and started moving towards the fence. The ambush was there sprung at an opportune moment, and the terrorists were engaged with precise fire well ahead of the line of control fence. The terrorists were heavily armed, well trained and equipped with sophisticated weaponry and equipment. In the ensuing intense firefight, 3 foreign terrorists were neutralized. A detailed search of the area was subsequently carried out, which led to the recovery of large quantity of warlike stores. Thus, the evil designs of the adversary to infiltrate terrorists across and vitiate the peaceful situation was nipped in the bud.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में 15 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक 5 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तकरीब का आगाज योगा गुरु श्री साहिल मेहरा के एक पुरजोश सेशन के साथ हुआ है, जिन्होंने जाती और पेशावराना दोनों जिंदगियों में ज्यादा से ज्यादा खुशी और जहन साजी की अहमियत पर जोर दिया है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कैंपस का एक वसी दौरा भी करवाया गया, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, नालंदा और स्मार्ट क्लासरूम्स शामिल थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बतौर मेहमान खसूसी नए बैच को गहरा पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान 2047 के मामार बनने जा रहा है और आप यहाँ के नौजवान कौम का चेहरा होंगे। Even in civil services, IAS, we had just 1 or 2% of women. Now in the current batch also, which is joined just about a few months back, we have had almost 28%. And the other part, there's a visible change in demography in these institutions of higher education and also these courses. And this other aspect is not only related to gender alone, it's also the change of demography in the regional sense. In the sense that most of these courses we had students from some of the handful of states which became known for this. The state of Bihar, from where of course many of your faculty also belong, or maybe down south, Tamil Nadu, Kerala. Now you have toppers from Punjab, from Haryana, even civil services. And toppers among girls were not very much heard of, which you of course have. In fact, for 2015 to 3 years consecutively, 15, 16, 17, we had a girl topper in the IAS. And only the next year we had a boy from Telangana, so I said you have broken the jinx. But then that was not long. The very next year, we had all the 3 toppers among the women. So this is a huge, it's also a reflection of the aspirational India which is growing. It is growing very uniformly. It is going across the genders, it is going across the sections, it is going across the region. सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू, डोडा और रियासी इजला में कुछ मुश्तबा नकलो हरकत की इतला के बाद तलाशी मुहिम शुरू की है। इतला के मुताबिक जम्मू के अखनूर सेक्टर में लोअर गरोटा, थाथी और मल्हाका इलाकों में आज पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की मुश्तरका कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब एक शख्स ने जंगी लबास में 3 अफराद की मुश्तबा नकलो हरकत की इतला दी। इसी तरह डोडा जिले के कोटी जंगलाती इलाके में पुलिस ने फौज की मदद से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के बाद आज सुबह मुहासरे और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इसी तरह से रियासी जिले के रोम्बल नाला, कोठियां, पोनी, डेरा बाबा बंदा, बब्बर, कुंडरा और कांजली इलाके में भी तलाशी मुहिम शुरू की है। जम्मू जिले के जानीपुर इलाके में एक जंग आलूदा पुराना ग्रेनेड बरामद हुआ है। इतला के मुताबिक आज सुबह जानीपुर में हाई कोर्ट के पार्किंग एरिया में एक जंग आलूदा ग्रेनेड देखा गया, जिसके बाद जल्द ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जंग आलूदा हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। देरियासना इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसी तरह के एक मोटार शेल आज उधमपुर जिले में भी बरामद हुआ है, जिसे बाद में नाकारा बना दिया गया है। पार्किंग का जहां पर एक ओल्ड हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किया गया है। और कुछ समय पहले उधमपुर से एक ओल्ड यहाँ पर जिस तरह से चलाया जा लगातार एरिया को जो है वो डाला जा रहा है। ये तस्वीरें इस पर भरोसा जो है वो जरूर बनाए रखें, जरूर जो है और धीरे धीरे जो है पूरी जगहों को जो है बहुत ही बड़ा सवाल उठता नजर आ रहे हैं यहाँ की सिक्योरिटी पर, कि जहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो है वो नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ हैंड ग्रेनेड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन जो है जांच का विषय जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और देख सकते हैं कुछ 24 घंटे आप तमाम लोगों की सेवाओं के लिए, आप तमाम लोगों की सेवाओं के लिए जान के बेचारे
जान को जोखिम पर डाल के जो है वो आप तमाम लोग हाजिर के लिए मकामी एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के एक अहम इकदाम में जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने जिला इंतजामिया बारामूला के ताउन से डाक बंगला बारामूला में ई कॉमर्स ऑन बोर्डिंग मुहिम का एहतमाम किया है। इस इकदाम का मकसद मकामी कारोबारी अफराद की सलाहियत को बढ़ाकर इक्तिसादी तरक्की को तकवीत देना है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बारामूला के हमरा फोरम से खिताब किया है। अपने खिताब में डीसी मौसूफ ने ई कॉमर्स नेटवर्क और इसके मुतअद्दिद फवाइद के बारे में कीमती बसीरत फराहम करते हुए कारोबार की तरक्की में डिजिटल कॉमर्स के अहम किरदार पर जोर दिया है। जिसके लिए भी आज के दिन हम 10 लोकेशन से प्रोक्योरमेंट करते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट फंक्शन है शॉर्ट खरीदना है, the only option before गवर्नमेंट एजेंसीज की हैंडओवर उस पे मैं भी होता हूं, वो ऑलरेडी मैंने आपको अभी दिखाया हूं कि मतलब कैसे आप 80% ऐसे यूजर हैं जो हमारे लोकल क्या सेलर्स नहीं सेटिस्फाई कर सकते, पर एक जगह स्वीट स्पॉट इसमें जैसे कोई दिक्कत मैडम जैसे कोई फंक्शन है शॉर्ट खरीदना है, the only option before गवर्नमेंट एजेंसीज की हैंडओवर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि यहाँ का लोकल बिजनेस है उसका ग्रोथ हो जाए ज्यादा से ज्यादा। इसकी कोई वेटेज है भी या बात वैसी है, मगर कोई दिक्कत पड़ती आई है कम लेने का, क्योंकि L1 था पर लेकिन वो क्वालिटी पैरामीटर वहाँ छूट जाता है हमारा, क्योंकि L1 हम कुछ करते हैं, हर कोई अर्ज करता है कि कश्मीर की शिया बरादरी ने आज 8वें मुहर्रम के मौके पर रवायती गुरु बाजार से डलगेट ताजिया जुलूस निकाला है। जुलूस पीर की सुबह शहर के गुरु बाजार मोहल्ले से शुरू होकर जहांगीर चौक और मौलाना आजाद रोड से गुजरते हुए डलगेट पर इख्तिताम पजीर हुआ है। हजारों सोगवार सुबह 5:30 बजे गुरु बाजार में जमा हुए, क्योंकि हुकाम ने जुलूस के लिए महदूद वक्त दिया था ताकि आम जिंदगी मुतासिर न हो। महकमा ट्रैफिक ने शहर के मकीनों को मुहर्रम के जुलूस के दौरान चलने वाले रास्तों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की थी। यहां श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सड़कों की सफाई के इंतजाम किए थे, वहीं रजाकार जुलूसों को पानी पेश करते हुए नजर आए। ये मुसलसल दूसरा साल है कि यहां हुकाम ने मुहर्रम के जुलूस को रवायती रूट पर चलने की इजाजत दी है। भाई साहब इंतज़ाम बहुत अच्छा था, शुरू से ही अच्छा था। इससे अलावा क्या होना चाहिए, क्लियर था सब कुछ, और बेहतर है कि खुदावंदी करीम चाहे हर साल इसी तरह से निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा है, लोग में कमी नहीं है। इसी की वजह से हम कोशिश कर रहे थे सुबह 5:30 से, ताकि हम जल्दी से जल्दी हम डलगेट पहुँच जाएंगे, लेकिन लोग ज़्यादा है उसकी वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी से ये जुलूस इख्तिताम में पहुँचेंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि 10 मुहर्रम के दिन भी आपको अलाउ किया जाएगा? मुझे लग रहा है कि 10 मुहर्रम भी गवर्नमेंट अलाउ करेंगे, ताकि जो उन्होंने देखा है पिछले साल 8वें मुहर्रम अच्छा निकला है और उसके बाद ओशुरा भी अच्छा निकला है, तो आज भी 8वें मुहर्रम अच्छा इस साल भी है, तो मुझे लग रहा है तो शायद कुछ ना कुछ अलाउ करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कहाँ पर ये अलाउ करेंगे। अपनी जगह जहाँ से हमने पिछले 33 साल से निकाला है या अभी गुजर से, ये वक्त ही फैसला करेगा, गवर्नमेंट ही फैसला करेगा। अभी जिस तरह से देखो गवर्नमेंट की जरूरत होती है, लेकिन जो हमारी जो हम अपनी आज़ादारी है, आज़ादारी खुद अपना ये करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जरूरत होती है नेचुरली। यार देखो गवर्नमेंट का इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकते हैं, ये हमें करना है। लेकिन जो बाकी आज़ादारी है, आज़ादारी तो खुद अपना सिस्टम बनाती है, दायरा अपना अच्छी तरह से जुलूस है, कोई गड़बड़ नहीं करते, कोई हमारा आज़ादारी का फैसला, इमाम हुसैन का फैसला ही, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। हम अगर आप इजाज़त देंगे, हमें पूरा यहाँ रोने का टाइम देंगे, हमें इमाम हुसैन का रोने जिंदगी और हम रो भी सकते हैं और रोना भी है, लेकिन हुकूमत का भी जरूरी। अंजुमन जाफरिया सुरनकोट मेंढर की तरफ से पिछले 17 सालों से इमाम बारगाह आलिया सुरनकोट में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इसी रवायत को कायम रखते हुए आज अंजुमन ने एक बार फिर से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया है, जिसमें चेकअप के साथ साथ अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। जिला पुंछ के माहिर डॉक्टर हजरात ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया है। कैंप की इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद शाहनवाज चौधरी, DDC सुरनकोट, SDM सुरनकोट फारूक अहमद, मौलाना सैयद अख्तर जाफरी व दीगर शामिल थे।
अलीफा बिशारत जी आज जो ये इंजीनियर जाफरिया की तरफ से मेडिकल कैंप विद कोलैबोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट फूड की तरफ से है। तो कल मेरे जाकिर सर ने मुझे फ़ोन किया, परसों की बात है, कि हमने कैंप रखना। तो मैंने आगे से कहा कि बेस्ट ऑप्शन जो हमारे बेस्ट डॉक्टर होंगे हम वो भेजेंगे। तो वो नाम दे के दोनों का नाम याद करके बड़ी खुशी हुई, डॉक्टर जाकिर सर और डॉक्टर इरशाद कुमार। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है, यही चाहते हैं कि हम जितने हो सके जिन ज़रूरतमंदों तक हमारे पास जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो खिदमत हम कर सकें, पहुंचा सकें। उसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए हमने जितना हमसे हो सका था हमने पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह पूरा दिन। जिला बड़गांव में मुहर्रम के महीने में पंडित खानदार हर साल की तरह इस बार भी अज़ादारों के लिए पानी, जूस, फल और दीगर चीजें तकसीम कर रहे हैं। यहाँ एक बसनीक तेज किशन कोल का कहना है कि वो और उनकी अहलिया सरला कोल और उनके साथ खानदान के कुछ लोग शरीक हैं जो हर साल इस काम को अंजाम देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ कश्मीर का माहौल खासतौर पर बड़गाम में अगर हम यहाँ भाईचारे की बात करें तो अब भी वैसा ही है। जब भी हमें जरूरत होती है हम एक दूसरे के घर जाते हैं, हर मुसलमान भाई का त्यौहार मनाते हैं और हम भी उस त्यौहार में बराबर के शरीक रहते हैं। यहाँ 2001 से आती हूँ, तब मैंने 211 से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सास ने बोला था कि ये दिन जो होता है ना, उस दिन हम कोरा वो होता है चोंग जिसको बोलते हैं कश्मीर में, उसमें हम पानी तेल के बदले पानी डालते हैं, उसमें हम सवेर डालते हैं, फिर रात भर वो 10 और 9 के रात 10 सुबह तक जलता था वो। तो हमें उस दिन से पता है, उस दिन से हम मनाते हैं। इतना मतलब मनाते नहीं, ये दुख की बात है, क्योंकि हमारे में भी महाभारत हो गया, ये उसी का एक हिस्सा है। तो ये हम उसी हुसैन के और उन बच्चों के जिनके पानी त्रेश के बदले कुछ नहीं मिला, अब मैं बोल नहीं पाती आगे, उसके लिए मैं ये करती हूँ। ये हमारे में स्टार्ट से है। चलो मैं मैके में थी तब भी हम मुसलमानों के साथ बहुत है, यहाँ भी है। यहाँ तो ज़्यादा शिया है, इसलिए हमें आपस में सब मेल जोल है। ये नहीं, कुछ नहीं है हमारे में, ये यहाँ नहीं है हिंदू मुस्लिम। ये हम स्टार्ट से करते हैं, हम इसमें शामिल हो जाते हैं। हमारे जेठ जो बड़े बड़े यहाँ के बड़े बड़गाम में रहते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग, वो बीच में जाते थे, पानी देते हैं, कार्टन जो मतलब उस दिन करते हैं वो 10वां मुहर्रम के दिन। उस दिन से मैं ये उनके नाम से देती हूँ बच्चों को, जो माँ देती है बच्चों को, बस इतना ही मुझे पता है। हम इकट्ठे हैं हिंदुस्तान में, इकट्ठे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, एक ही है यहाँ हिंदुस्तान में। रोजगार दफ्तर रियासी में मुनक्कदा रोजगार मेले के दौरान डिप्टी कमिश्नर रियासी वशेषपाल महाजन ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप हब का भी मुआयना किया है। यहाँ पर नस्ब, कंप्यूटर सिस्टम, कुर्सियां, LED और सोफे को देख कर भी वहाँ उनका मुआयना किया है और जरूरी हिदायत भी जारी की है। ये बेसिकली दिस सोफा वाज नॉट रिक्वायर्ड। ये राउंड टेबल चाहिए मुझे, बच्चे एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप वो यहाँ पे आके चर्चा करें। दिस हैज टू बी अ हब ऑफ स्टार्टअप, इट शुड नॉट बिकम अ रूटीन ऑफिस एंड दिस विल नॉट बी यूज्ड एज अ रूटीन ऑफिस। यहाँ पे वो ताजमहल वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। It should be free of cost, no? If I am giving advertisement to somebody. उनको बोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें हमें। स्क्रीन यहाँ लगेगी, ये कॉपी मशीन यहाँ नहीं लगेगी, और जो लोग तुम्हारी बेकार कुर्सी है वो उठवा लीजिए ना। मैंने कहा था प्लास्टिक चेयर लाएंगे, ये नहीं लाएंगे। दिस वाज आल्सो टोल्ड, दीज चेयर्स विल नॉट, ऑफिस चेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तुम लोग सुनते नहीं हो बात को। यहाँ बैठे मुझे वो चाहिए जो नौकरी दे सकते हो। आप हर चीज में वो
सरकारी मुलाजमत क्यों चलाते हो? एसी कहाँ है यहाँ? इट वॉज डिसाइडेड कि एसी लगेगा इसमें। वेयर इज द एसी? ऐसे ही नहीं था, इट वॉज एसी। आई हैड गिवन डायरेक्शन। डोंट टेल मी, आई डोंट फॉरगेट थिंग्स। You people cannot put in places of your own choice and things of your own choice. You will not decide. I had given clear-cut instructions. This should be a good place to sit. उसी में तुम्हारा ये डिसाइडेड था कि 1 साल का फ्री इंटरनेट का कनेक्शन भी तुम ही उसी पे पैसों में खरीद के दोगे। तुम लोग डिसाइड करोगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बेकार से घटिया सा सोफा लेके आगे तुम रंग ही देखो, इसका रंग देख के नहीं बैठूंगा मैं इस पे। इसी मौसूफ ने जॉब फेयर में मौजूद नौजवानों को अपना रोजगार खोलने की तरगीब दी और कहा कि नौजवानों के लिए बहुत से सुनहरी मौके हैं जिनसे उन्हें फायदा उठाना चाहिए। हाँ, वो मुझे पता है। नहीं, ये जो है ना, इसको ये लेमन ग्रास कहते हैं, बड़ा यूज हो सकता है, तो उसको करें। ये क्या बनाया है? बनाया है जहाँ पे लोग आके बैठें, चर्चा करें नए आइडियाज के बारे में। स्टार्टअप अब एक कॉमन को वर्किंग प्लेस है। आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप अपना ऑफिस किराए पे ले सके या खरीद सके। तो यहाँ पे हम आपको फ्री इंटरनेट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, इंटरनेट के जरिए बैठने के लिए एक कुर्सी, हमारे पास कंप्यूटर भी लगा, लेकिन आप अपना लैपटॉप या फ़ोन लाना चाहते हैं, उसको लेके आइए, उन पर चर्चा करिए। उस चर्चा के बाद आप इंश्योर करिए कि आप अपनी मेहनत से कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे ना केवल आपका फाइनेंशियल अपहीवल हो, बेटरमेंट हो, लेकिन आप और भी लोगों को नौकरी दे पाए। ये उन नौजवानों को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, जो बड़ा सोचना चाहते हैं, उनके पहले कदम के लिए एक सहूलियत हमने यहाँ पे क्रिएट की है। ईडीआई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इसको देखेंगे, इसको रन करेंगे और स्वयं मैं इसको मॉनिटर करूँगा। एटलीस्ट अगर मैं वीकली बेसिस पे नहीं कर पाया तो फोर्टनाइटली बेसिस पे, और मैं यहाँ पे आया करूँगा। वी विल रन इंटरैक्टिव लेक्चर्स विद यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस रियासी, और कोई बाहर का भी आना चाहता है तो वो भी आए, क्योंकि वक्त बदल गया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास इतना टैलेंट है, इतने रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छा क्रिएट करें जो एनवायरनमेंट है स्टार्टअप्स का, और उसका ये पहला कदम है, एक को वर्किंग स्पेस है स्टार्टअप का। जो फिर में अलग अलग कंपनीज आई हैं जो अपने लिए एम्प्लॉयज को ढूंढ रही हैं। अंबुजा सीमेंट और टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रोहमा राफियाबाद की तरफ से जीशान होटल रोहमा राफियाबाद बारामूला में दस्तकारों के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग का मकसद अंबुजा सीमेंट की खासियत को जाहिर करना था। इस मीटिंग के बाद तामीराती कारकुनान में तोहफे भी तकसीम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोहमा रफियाबाद में डिस्ट्रिक्ट बारामूला रोहमा में अंबुजा सीमेंट की तरफ से एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें कारीगरों के साथ इन्होंने मीटिंग की है, जिसमें इंजीनियर अमर अजीज़ और असद साहब था, और जिन्होंने टाइटन ट्रेडिंग रोहमा में इनकी वजह से इन्होंने ये कहा है कि सबसे बेहतरीन ब्रांड है कि अंबुजा सीमेंट अपने मकानों, अपने दुकानों, अपने कम्प्लेक्सों में लगाएं, ताकि इनको बेहतरीन से बेहतरीन मौका मिलेगा, इनको मजबूत से मजबूत मकान बनाएं। और हम यही कह रहे हैं कि हर एक कारीगर को, हर एक दुकानदार को, हर एक मकान बनाने वाले को, हर एक कम्प्लेक्स बनाने वाले को कि हमारे पास आए, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है अनीस समी तंत्रे रोहमा का रहने वाला है, और यहाँ पर आपको अंबुजा सीमेंट की वह हर वक्त 24 घंटे में मैसर रहेगा। और यही नहीं बल्कि हम हर एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए हर एक चीज़, हर एक आइटम हम सस्ते दाम में दे सकते हैं। और आपको चाहिए कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9906477114, या हमारे दूसरे अनीस हमीद तंत्रे का अकाउंट मोबाइल नंबर है 6005474121। हर एक को चाहे कि
हमारे पास रोहमा में आए, जहाँ पर अंबुजा डिस्ट्रीब्यूटर है अनीस समीत तंत्रे, उसके पास आए और राब्ता करें कि जो अपने मकान को या अपने कम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होगा वो हमारे से ले ले। गैर सरकारी तंजीम सहयोग धारा का आज टीआरसी किश्तवाड़ में एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तंजीम को हर इलाके में मजबूत करने पर गुरुखोज किया गया है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके और उनमें तालीम का शऊर पैदा करने के साथ साथ उनकी बेहतर सेहत को भी यकीनी बनाया जा सके। सबसे पहले डॉक्टर डेजी परिहार जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का कंसेप्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही नहीं बल्कि पूरी स्टेट में जो एनजीओ रजिस्टर्ड हुई है, इसके अंतर्गत जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको भी एक रोल मॉडल मिलेगी कि इस तरह भी हम काम कर सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चला तो हम एश्योर करते हैं मैम को कि वी आर कमिटेड टू वर्क अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मैम इन बोथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। मैं अपनी सभी साथियों के साथ मैम को पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि हम अपने समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, जो जो काम हमें सौंपा जाएगा हम उस काम पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सहयोग धारा नाम से ही लगता है सहयोग धारा, फ्लो ऑफ हेल्प। ये बनाया गया है कि सब मिलके ऐसा काम करें कि इसमें हम दो फील्ड्स को लेकर चल रहे हैं कि एक तो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ सेक्टर। इसमें हम काम करना चाहते हैं। जैसे दूर दूर गांव वगैरह में एजुकेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करना चाह सहयोग धारा के अंडर हम ब्लड डोनेशन कैंप होगा, CPR हर महीने हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ हुआ करेगा। उसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे और जो अभी मॉडर्न एजुकेशन है उसका कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस करना है दूर दूर पहाड़ों में, गांव में, उस पर काम करेगा सहयोग धारा। तो उसके अलावा 2-3 लाख रुपया नहीं हेल्प की है, अभी 1 लाख रुपया हेल्प किया है पेशेंट का सहयोग धारा ने, और आगे भी कोशिश करेंगे। कोई बहुत मजबूर है या जिसको बहुत ज़रूरत है तो हम उसकी मदद किस तरह से असिस्ट उसको कैसे कर सकते हैं कि उसके प्रॉपर उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिला जाए। जैसे मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ से पेशेंट रेफ़र होके जाते हैं वहाँ पे हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। उन्हें ब्लड कई बार चाहिए होता है, टाइमली इंजेक्शंस वगैरह कैसे उन्हें मिलने चाहिए, डॉक्टर्स के साथ उनके फॉलोअप वगैरह के लिए बात करना, उसके लिए काम करेगा सहयोग। अभी तो सहयोग धारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही काम कर रही है, जो अपने प्रोग्राम्स हम यहीं पे कर रहे हैं, पर इसके अलावा जम्मू में भी हमने इवनिंग स्कूल रखा है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, जिसमें 70 बच्चे हमारे इवनिंग ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं। मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप कोई भी काम करिए पहले इंसानियत के लिए काम करिए। अगर आप अपने मन से आपको लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ अच्छे रास्ते पे कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, तो आपके मन में आपको इतनी खुशी मिलेगी, उससे किसी का जीवन तो सुधरेगा। ये भारत माता के जो हम कंसेप्ट के हम देशभक्ति को अगर डिफाइन करें तो मुझे लगता है तभी देशभक्ति, जब भारत का भविष्य हम और सुंदर बनाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।